That's the reality of the jungle Raj in Uttar Pradesh. A journalist exposes a minister, accuses him of corruption, accuses him of gang rape. Police are sent to his house. All kinds of charges are put against him, and the police then pour petrol on him. And then they set him on fire. And there's a declaration there, dying declaration, in which he talks about what happened to him. And there's no justice. Now, what the message this sends out, Ajay Bose, as far as I'm concerned, is that if you're a journalist, you're unsafe in Uttar Pradesh. If you question the establishment, you're vulnerable. That the establishment will do nothing, that a journalist will be killed and murdered and burnt in his own house, and that the government will watch, and this is the jungle Raj that Akhilesh has now spread. I really don't know, frankly, Ajay Bose, why this is not a subject of national outrage yet, and how the Akhilesh government has managed to cover it up. Absolutely, Arnab. For the last few days. No, Arnab, I think that this is something, this is something we cannot just let be. This is barbaric. And this cannot be allowed, to just die out, because they show no sign of investigating the case at all. Nobody has been arrested. Why arrested? Nobody has been questioned. The minister still continues. And, it is absolutely unacceptable. And I think the entire media across the country and citizens across the country must stand up for this journalist. Mantri kahan hai? They should realize Syed Asim Wakar, these cases. Syed Asim Wakar, मंत्री कहाँ है? Absolutely shocking. Syed Asim Wakar, ये murderer मंत्री कहाँ है? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं गोस्वामी जी आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जबान की आज़ादी है। टाइम्स नाउ और आप कुछ भी कहें, आपको आज़ादी अपनी बात रखने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, किसी भी आदमी के ऊपर आप आरोप नहीं तय कर सकते, मैं आरोप तय नहीं कर सकता। वो अदालत में तय होते हैं, जांच में तय होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी चीज नहीं, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, आपको मैं साफ कर दूं, किसी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धमकी मुझे मत दीजिए। और आप कौन होते हैं कहने के लिए उत्तर प्रदेश में जबान की आजादी? आप कौन है? आपने संविधान लिखी थी? जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए वाकर जी। अपनी लक्ष्मण रेखा में रहिए वाकर जी। नहीं, आप अपनी लक्ष्मण रेखा में रहिए वाकर जी। नहीं, मुझसे नहीं, दूसरी बात है, मेरे जवाब का मेरे सवाल का जवाब दीजिए। There are 4 days since the FIR was filed, nobody has been arrested. 4 days since the FIR was filed, the minister is not sacked. 4 days since the FIR was filed, no, 1 second please. 4 days since the FIR was filed, the minister is on the run. 4 days since the FIR was filed, including against the policeman Prakash Rai, he's not been arrested. 4 days since the FIR was filed, the minister in question has time to say the matter has been brought in the chief minister's knowledge. We'll soon meet him, and after that we'll meet the press to put forward to my side of the story. 4 days since the FIR was filed, the minister can present his side of the events to Akhilesh Yadav. जो फैमिली या विक्टिम की उनकी हालत देखिए, और उससे ज्यादा आप सोचिए कि घिनौनी हरकत है कोई जर्नलिस्ट के ऊपर पेट्रोल डाल के उनके घर में जला के उनको मार डाले। आप जबान की आजादी के बारे में बात बोल रहे हैं। एक मिनट शाजिया wants to say something, and before that Padma Rao also wants to come in. Padma Rao, please. आप क्या समझ रहे हैं इसको? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। Are we living in a democracy? Yes, Padma. मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। अगर आप कहते हैं कि टाइम्स नाउ चैनल या हम जैसे जर्नलिस्ट जो शहरों से आते हैं यूपी, आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ये एक छोटा सा जर्नलिस्ट था छोटे से शहर से, तो क्या इसका मतलब है कि उनको आप परस्यू करेंगे और उनको आप हैरेस करेंगे? हमें तो कोई फिक्र नहीं है यूपी आने में, लेकिन क्या इसका मतलब हो कि ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करेंगे, और जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट होते हैं जो छोटे पब्लिकेशंस के लिए लिखते हैं उनको आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? और आप ये बताएं कि आपके मंत्री जी अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो भाग क्यों रहे हैं? अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो कहाँ है? वो कहाँ है? मंत्री जी मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। आप मुझे आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, नहीं वकर जी, आप मुझे ये बताइए, आज कोई नेता, आज कोई समाजवादी पार्टी के नेता कोई छोटे मोटे नेता के साथ उनके घर के अंदर आके
उनको मार के पीट के, पुलिस उनको मारे पीटे, उसके बाद पुलिस उनको जला दे, और जलाते जलाते अगर वो समाजवादी पार्टी नेता कहता हो कि मुझे पुलिस ने जलाया, तो आपकी हिम्मत होती है ऐसे बोलने के लिए जबान की आजादी के बारे में? कि अखिलेश यादव की हिम्मत होती उस वक्त की कुछ ना करे, दूसरी तरफ देखे? आप मुझे बताइए, नेता के साथ हो तो बुरा और जर्नलिस्ट के साथ हो तो सही। अगर आप मेरी बात जी ना, आप मुझे बताइए ना, सुनने के लिए बुलाया है तो मैं बैठ के सुन। नहीं, आप बताइए ना, आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे। नेता कहाँ है आपके? मंत्री कहाँ है आपके? मंत्री कहाँ है? आप सुनना नहीं चाह रहे साहब मेरी बात। कहाँ है? भाग क्यों रहे हैं वो? मैं तो सुनना चाहता हूं, आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, एक बार बता दूं आपसे कि जब रिपोर्ट हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इसमें जांच होगी और जांच के बाद ओह माय गॉड, प्लीज, एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद कहाँ है मंत्री? इसमें गुनाहगार है एफआईआर कौन? अरे भाई, आप मेरी बात सुनिए, आप समझ क्यों नहीं रहे? एफआईआर तो पुलिसमैन के खिलाफ है। हमें पता नहीं, आपको लगता है कि भारत में उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मी को हेल्प करेगा, पुलिस नेता को हेल्प करेगा? आम आदमी कौन है? जर्नलिस्ट कौन है? आज जर्नलिस्ट मर जाए, जला दें, क्या फर्क पड़ता है आपको? 4 दिन हो गए, अखिलेश यादव की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। इतना घिनौना हरकत हो गई। और आपने कैसे इस मैटर को साइलेंस करके रखा? इतने दिन हो गए, किसी ने किसी को पूछा नहीं, मंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि यह न्याय है। आप देखिए ना, आपने फोटो नहीं देखे जर्नलिस्ट का, कैसे वो बोल रहा था? ये राम मूर्ति सिंह वर्मा, ये कहां है आपके कायर मंत्री? आपके कायर मंत्री कहां है? नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत, आपके ये कायर मंत्री कहां है? दिस कावर्ड मिनिस्टर। जब तक के जांच नहीं हो जाएगी, क्या जांच हो जाएगी? कैसी जांच हो जाएगी? आप मुझे बताइए, कैसी जांच हो जाएगी? किस जांच के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या बात कर? नेता के साथ ऐसा होता तो ऐसा क्या करते हैं? देखिए, जो इंक्वायरी चल रही है, क्या इंक्वायरी? किस इंक्वायरी के बारे में बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड द पुलिस हैव डन नथिंग टू एप्रीहेंड द अक्यूज्ड। द जर्नलिस्ट हैज मेड अ डाइंग डिक्लेरेशन। मैं प्ले करता हूं डिक्लेरेशन, मैं फिर एक बार प्ले करता हूं, शाजिया विल देन कम इन। मैं डाइंग डिक्लेरेशन इज एविडेंस टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की लॉ चलाएंगे? अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32(1) ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एविडेंस टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। इनको तो बिल्कुल इसी वक्त, इसी मिनट उनको अरेस्ट करना चाहिए, करना होगा आपको। आप समझ लीजिए, आपको इनको अरेस्ट करना होगा। आप समझ रहे हैं? सैयद वकर जी, जाके कह दीजिए अखिलेश यादव को कि उन्होंने संविधान नहीं बनाई। आपकी सारी बात समझ रहा हूं। नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन है कि नहीं? मैं प्ले करता हूं। समझना नहीं चाह रहे हैं। डाइंग डिक्लेरेशन है कि नहीं? डाइंग डिक्लेरेशन, मरते हुए व्यक्ति की डिक्लेरेशन, इसको सुन लीजिए, मैं प्ले करूंगा, आप स्क्रीन पे रहिए। एक मिनट, लेट्स प्ले इट प्लीज। दीवार फान के तो पुलिस वाले अंदर आए और रिवाल्वर ताने थे। पहले बहुत मारा हमें, उसके बाद फिर टोल डाला, शरीफ का सराय ने आग लगा दी गई। आपको आप फिर एक बार प्ले करूं? मरते हुए व्यक्ति ने क्या कहा कि पुलिसमैन मेरे घर, ना एक मिनट, पुलिसमैन मेरे घर के अंदर आए, मुझे बहुत मारा, फिर मुझे जला दिया, मैं क्या करूं? और उसने ये भी कहा है, जो अखबार में आया है, कि उन्होंने कहा कि मुझे पीटते, मुझे जला क्यों दिया? जला देते हैं। नहीं क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इनको अरेस्ट करना होगा। अजय बोस कुछ कह रहे हैं। अजय बोस भी शामिल है। क्या बात करें? कौन कोई भी शामिल है? क्या कोई भी शामिल है? क्या कोई भी शामिल है? होगी ये, इट इज बारबैरिक, वी कैन नॉट अलाउ दिस। आप क्या बात कर रहे हैं? वी कैन नॉट अलाउ दिस। आपको लगता है हम आपको छोड़ेंगे इस बात पर? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन मजाक सोच रहे हैं। यस, शाजिया इल्मी, गो अहेड। आई जस्ट हर्ड, हमने जगेंद्र सिंह जी की आवाज सुनी, और आवाज में जो दहशत था और जो पूरा तकलीफ थी उनकी, वो सुनने को मिल रही थी, और इतना अफसोस हो रहा था। दिस इज रियली एन एक्ट ऑफ evil men. So not only should we all press for arrest of this minister, but I really think we should go all out,
and not just as members of parties or as journalists. Absolutely. Or as a fraternity of media, but just as citizens, because this is really gruesome. There's monsters out there. You know, a journalist in India, this is from Kaushambi, Allahabad, इतने कम तो मीन्स होते हैं, इतनी मुश्किल होता है कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना पावरफुल इंसान के खिलाफ, और फिर अगर कोई हिम्मत करता है तो डराना धमकाना तो एक तरफ, ये बात कर रहे हैं जांच होगी, पर आप और जबान की आज़ादी की, क्या ये मंत्री हैं तो किसी को मार डालने की इनके पास आज़ादी है? क्या ये मंत्री है तो इनकी हिम्मत है कि पुलिस को अपने बिल्कुल पपेट की तरह से इस्तेमाल करें और एक आम जर्नलिस्ट को, एक आम पत्रकार को इस तरह से मारी पीटे और जलाए? इतने अफसोस की बात है। मुझे तो इतना ताज्जुब हो रहा है, और मुझे लगता है कोई भी सुनेगा इसे, कोई भी आम इंसान सुनेगा कि आई मीन विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द पेन इन दिस मैन्स वॉइस एंड द फियर दैट ही वाज गोइंग थ्रू. इमेजिन दैट ही इज बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस, and all of us are mute spectators. And there should be national outrage. Yeah, absolutely. There should be. Shazia, let me. नहीं, मैं वकार जी आपको पता है कि जो राममूर्ति वर्मा के खिलाफ क्या लिखा था जर्नलिस्ट ने, आपको पता है? नहीं, मुझे पता है। मैं जरा एक मिनट, मैं जरा एक मिनट सुनिए, मैं जरा आपको 2 मिनट इसको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि वर्मा, who is a minister in the government of Akhilesh Yadav, had seized tracts of land and launched illegal mining operations that earned him crores of rupees. इलीगल माइनिंग जो आजकल बहुत नेताओं की हॉबी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा that he and his men are involved in the rape of a children's center worker. आप मुझे बताइए कि एक मंत्री के खिलाफ चिल्ड्रन सेंटर वर्कर के रेप के एलिगेशन जर्नलिस्ट ने लगाए। आप मुझे बताइए रेप के एलिगेशंस पर अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है आज तक? बताइए। नहीं अर्णव जी, देखिए रिपोर्ट दर्ज है उसकी। नहीं, ये रिपोर्ट दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, क्या बात कर रहे हैं आप? जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच में क्या जांच? क्या कोई जांच? आप मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। किसी पर आरोप कैसे? क्या जांच? आप मुझे आरोप के बारे, मैं कह रहा हूं कि आज तक इंडियन एविडेंस एक्ट में उनको अरेस्ट होना चाहिए था। क्या कर लेंगे आप? अरेस्ट होना चाहिए था। Arnab, I have one question. डरा धमकाने के सवाए आप कर क्या सकते हैं? पद्मा जी कुछ कहना चाहती है आपको, शाजिया भी कहना चाहती है, अजय भी कहना चाहते हैं इस पर। और बाय द वे जर्नलिस्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कंप्लेन किया और उन्होंने कहा, शाजिया, कि जब से मैंने ये सब स्टोरीज मंत्री के खिलाफ की है मुझे अटैक किया गया है। द मिनिस्टर इज एट द रिसीविंग एंड ऑफ गैंगरेप एलिगेशंस ऑन May 28th। क्या आप मुझे बताइए, एक तरफ मंत्री के खिलाफ गैंगरेप के एलिगेशंस है और उसके बाद पुलिस जाके जर्नलिस्ट को जला देती है? ये कोइंसिडेंस है वकार जी? ऐसे ही हो गया या उन्होंने खुद जला दी या मरने से पहले उन्होंने झूठ बोली? सेलिब्रेटिंग 40 years. अगर आपका अपना कोई ज़मीर है, even during the emergency this did not happen. वकार जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना फिक्र हो रहा है और अगर आपको सिक्योरिटी का कोई भी फिक्र है, चंद घंटों बाद जब ये घटना घटी थी, चंद घंटों बाद एक दूसरा जर्नलिस्ट था जो कानपुर में अटैक किया गया है क्योंकि वो इलिसिट गैम्बलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, लिख रहा था। वो आज फिलहाल जैसे हम इस डिबेट को कर रहे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में लेटा हुआ है। आप मुझे बताइए, आपके जो स्पोक्समैन हैं, जो राजीव राय हैं, दूसरे चैनल पे 10 तारीख को, मतलब चंद दिनों पहले, उन्होंने बोला था, उन्होंने वायदा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पूरी कार्यवाही इनकी केस में, जो जगेंद्र सिंह की केस में आपकी पूरी कार्यवाही आप खत्म करोगे। आप मुझे टाइम्स नाउ चैनल पे यही वायदे को रिपीट कीजिए, फिर एक बार प्लीज दोहराइए कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 17 तारीख के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और अब
आप मुझे कृपया ये भी बताएं, प्लीज एक्सप्लेन हाउ कम दिस अदर जर्नलिस्ट, इफ सिक्योरिटी, इफ यू हैड एनी सेंसिटिविटी इन योर गवर्नमेंट, हाउ कम अनदर जर्नलिस्ट वाज अटैक्ड एंड इज लाइंग इन अ क्रिटिकल कंडीशन इन कानपुर बिकॉज ही वाज राइटिंग अबाउट illicit gambling in the region he was staying in. Please explain these two things to me, and please promise that you will finish this investigation by the 17th as your spokesman promised. देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये प्रॉमिस जी, किया आपका है, सवाल है, आपके लिए है कि इस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग की बात, जो भी लोग मंत्री की बात कीजिए, जो भी लोग, ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है कि मंत्री के हाथ है। कौन जो भी लोग? मंत्री की बात कीजिए, मंत्री की बात कीजिए। मिनिस्टर को क्वेश्चन शाजिया इल्मी कुछ कह रहे हैं आपसे वकार जी, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे आज आप। वकार साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं। सर, मैं आपको जवाब सुनना चाह रहे हैं जो आपके दिमाग में है, आपको सुनना चाह रहे हैं, वो जवाब तो मैं दे नहीं पाऊंगा। नहीं वकार साहब, आपने कार्रवाई की बात की है, आपने जांच की बात की है और आपने कहा कानून अपना काम करेगा, लेकिन वकार साहब ये इतने संगीन इल्जाम है कि गाज सिर्फ आपके मंत्री और आप पर नहीं, इस सरकार पर और उसके मुखिया पर पड़नी चाहिए। ये बहुत ही, ये ऐसी चीज है, ये राक्षसों दानवों का काम है जो हुआ है। आपके कहने से, ये बहुत ही संगीन इल्जाम है जी, आपके कहने से नहीं होगा। मैं आपकी इस बात पे एक बात कह दूं, आप भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल होगा, हम सबके कहने से होगा, हम सबके कहने, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं इसमें। भाई साहब सुन लीजिए मेरी बात, अब आपने कह दिया, इंसान हूँ, आपने सरकार को घेरे में खड़ा किया है। भाई साहब मैं नागरिक हूँ, आप में जमीर है, आप तो इंसान हैं, आपके अंदर तो इंसानियत होगी। एक आम पत्रकार बनता है, चलाया जवाब देना चाह रहा हूँ, उसकी बीवी के आप सरकार पे सवाल खड़ा कर रही हैं, आपने मैं बिल्कुल आप भी बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग दायरे में रह के बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। नहीं आप भी कीजिए, अच्छी बात करें, ज्यादा बेहतर भाई साहब, अगर आप में इंसानियत है तो आप भी कीजिए। भाई साहब अगर आप में इंसानियत है ना तो आप भी कीजिए। मैंने कहा ना कि आप हमारी सरकार पे उंगली उठाते तो मैं सुनता रहा हूँ, आप हमारे मंत्री पे उंगली उठाते तो मैं सुनता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आप गलत, और अगर मैं जवाब देने की कोशिश करूँ तो मैं बेशर्म हो गया। इल्जाम है ये बहुत, ये हैवानियत का काम हुआ है, जो सरकार पे उंगली ये बहुत ही राक्षस है, ये मंत्री राक्षस है। भाई सरकार की बात कहाँ गई? नहीं, ये रिपोर्ट थी अब मई 28 को, ऑन द 28th of May, 28 मई को, 1 second, this is the reality of our country, ladies and gentlemen. On the 28th of May, this journalist reports about the rape case. He says, अखिलेश सरकार के मंत्री राममूर्ति व साथियों पर रेप का आरोप, महिला को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बुलाकर किया गैंग रेप. That a woman was called to the PWD guest house and gang raped by the minister. कोतवाल घर से उठाकर लाया था महिला को. That a policeman took the woman, picked up the woman, brought her to the guest house so the minister could gang rape her. And on May 31st he reports, और एक रिपोर्ट करते हैं वो सुन लीजिए, कि मंत्री is trying to put pressure on him to withdraw the complaint of rape. And he says, बलात्कारों को बचाने में जुटे सपा नेता, which means to protect the rapist, the समाजवादी पार्टी leader is busy. राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा और उनके 4 गुर्गों पर लगा रेप का आरोप. That there is a rape allegation against the minister and 4 of his people. गुंडों और पुलिस से पीड़ित महिला को धमकाया जा रहा है राजीनामा के लिए, which means are using gundas and the police. The victim of rape is being pressurized to take back the complaint. On the same day, he also reports how the minister is constructing colonies or agricultural land and is acquiring so much wealth. So, after that, what happens? पुलिस अंदर आती है, पीटती है, जला देती है, मार डालती है. जंगल राज है उत्तर प्रदेश में. और आप शाजिया इल्मी को कह रहे हैं क्या जबान पे लगाम रखा है? काम पे लगाम कौन रखेगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए. ये गैंगरेप के एलिगेशन पर, मंत्री जी पर गैंगरेप का एलिगेशन लगाए, बर्खास्त कीजिए उनको, बर्खास्त कीजिए उनको, बर्खास्त कीजिए उनको. मत करें.
क्योंकि मेरी जो भी बात मैं बोल रहा हूँ यार रिकॉर्ड आप हो रही है। बर्खास्त करें मंत्री को, ढूंढे उन कायर मंत्री को। और जो सही नो बात है वो गैंगरेप के एलिगेशन फेस करते वाले जंगल राज नो मिनिस्टर फेसिंग गैंगरेप एलिगेशंस कैन कंटिन्यू इन ऑफिस। आप अगर चुप रहेंगे तो मेरी बात सुनने में आएगी। गैंगरेप एलिगेशंस, आप मुझे बताइए, सीधा सवाल है, मंत्री के खिलाफ गैंगरेप के एलिगेशंस है, जब तक कि आप मेरी जवाब नहीं सुनना गैंगरेप के एलिगेशंस वाले मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उसने के बाद जवाब सुनने की ताकत रखिए। वकार जी ताकत वाकत ये सब फिजूल की बात मत कीजिए मेरे साथ, मुझे टाइम नहीं है फिजूल की बात के लिए। मैं पूछ रहा हूं, मंत्री के खिलाफ गैंगरेप के एलिगेशन बहुत बड़े एलिगेशन होते हैं। अजय अभी आपने आपके मंत्री है कहाँ? आप मुझे बताइए, आपके मंत्री है कहाँ? आपके मंत्री है कहाँ भाई? आइए न्यूज आर पे बुलाइए उनको। आपके मंत्री है कहाँ? उन्हें बुलाइए न्यूज आर पे। मैं कह रहा हूँ कि बात मैं कह रहा हूँ आपके मंत्री को बुलाइए आप आज न्यूज आर पे। मैं जवाब देना चाह रहा हूं। कहाँ है आपके मंत्री? कह रहे हैं आप 4 लोग इकट्ठा हो, आप मुझे एक मिनट हिम्मत की बात मत कीजिए। ये कायर मंत्री को न्यूज आर पर लाइए, मैं सवाल पूछूंगा उनको, पुलिस के सामने लाइए। नहीं, जो मैं जवाब दे रहा हूं उसको तो सुन लीजिए। नहीं, आपके मंत्री कहां है? अजय बोस चौड़े होकर ये कह दिया कि सरकार जंगल राज उत्तर प्रदेश में कह दिया आपने। अब इसका जवाब ये जंगल राज तो मैंने बहुत कम कहा है। मंत्री का जवाब भी तो सुन लीजिए आप। क्वेश्चनिंग हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी भारत सरकार के 4 दिन पहले भारत सरकार के 3 मंत्री लखनऊ आए, जनाब राजनाथ सिंह जी, जनाब पीयूष गोयल जी और जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी और तीनों लोगों ने अलग अलग मीडिया के सामने यह बात कही कि बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार बात कर रहे हैं। पद्मा, तो अब आप ये बता दीजिए कि आपकी बात मानी जाए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, 3 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के जो कह रहे हैं इनकी बात मानी जाए, पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे। अरे प्लीज डोंट टॉक रबिश। मंत्री कहाँ है? आप बताएं, जो जुल्मी मंत्री है वो कहां है, उसके बारे में आप सुनाइए। आपको मैं आईजी पुलिस जो है सस्पेंड क्यों नहीं किया है? जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी आप क्या बात क्यों नहीं किया? हो गई है तो कानून अपना काम करेगा। क्या कानून का तो आपने ऐसी हालत करके रखी है वहां पे, कानून सिखाएंगे आप? आपको मैं बताता हूं। नो 1 सेकेंड अमिताभ ठाकुर बताना चाहता था आप मुझे 1 मिनट। वकार जी, मीडिया ने बहुत दबाव बनाया, और यहां तक हद हो गई कि आप वकार जी इंस्पेक्टर जनरल अमिताभ ठाकुर का नाम सुना होगा आपने? नहीं देखा थी उनके मामले में और प्रतापगढ़ वाले मामले में कहना चाहेंगे दबाव बनाया। जिस लड़की की बात हो रही है क्या वो सुरक्षित है? और सीबीआई जांच में ओके, सो 1 सेकेंड दोनों जगह पर सरकार 1 मिनट वकार जी आप तो नहीं मानेंगे। क्लीन चिट दी वकार जी आप मामले में दबाव डाला जा रहा है। अरे भाई, क्या वो सुरक्षित है? वकार जी आप तो नहीं मानेंगे। वकार जी आप तो नहीं मानेंगे, मेरी बात सुनिए। वकार जी आप तो नहीं मानेंगे, मेरी बात सुनिए। 2 बातें मेरी बात सुनिए वकार जी। मैं आपसे कह रहा हूँ वकार जी, हमारी बात मान लीजिए और जांच हो जाने दीजिए। वकार जी 1 मिनट। जो भी वकार जी जो लोग कायर होते हैं, जो लोग कवर नहीं सुनिए मेरी बात, आपने कहा मैंने रोका नहीं। जो लोग कायर होते हैं, जो लोग घमंडी होते हैं और जो लोग सोचते हैं कि सच्चाई को अलग रख देंगे, उन पर दबाव तो बनाना चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज न्यूज आर पर कि हम दबाव बनाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल अमिताभ ठाकुर ने, सुनिए मेरी बात, आपके इंस्पेक्टर, आप मेरी बात सुनिए, मत 1 मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, 1 मिनट। मिस्टर वकार, एक जर्नलिस्ट को एक रेप के केस हमारी बात मानिए वकार जी, उसके बाद Wakar ji, listen to me. Just listen now. 2 minutes. Listen to me. Okay, 1 minute. Inspector General Civil Defence Amitabh Thakur on June 7th said that Jagendra Singh had told him, यानी कि आईजी को जगेंद्र सिंह ने कहा और उन्होंने 7 जून को कहा
कि he was being hounded for exposing Verma's alleged involvement in illegal mining and forced occupation of land। यानी कि आपके ही राज्य सरकार के बहुत ही वरिष्ठ पुलिस कर्मचारी, छोटे मोटे नहीं, इंस्पेक्टर जनरल सिविल डिफेंस ने खुद कहा कि इस जर्नलिस्ट पर बहुत दबाव बन रहा था, उनकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि वो वर्मा के इलीगल माइनिंग और फोर्स्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड को एक्सपोज कर रहे थे। तो उस वक्त आपके ही आईजी के पास सारा इंफॉर्मेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन? देखिए, क्या इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं? आप कवर अप कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे आपको कवर अप। अभी जी जिनका आपने नाम लिया, इन जनाब की शरीके हयात हैं, उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ एक हमारे मंत्री के खिलाफ जांच के लिए अर्जी दी थी, उसकी जांच शुरू हुई, आखिर में ये सबूत नहीं दे पाए और लोकायुक्त को जांच बंद करना पड़ी। दिस इज द प्रॉब्लम अजय बोस, दिस इज द प्रॉब्लम। एक बात बताएं आप कुछ जी, जब उस आदमी को जलाया गया तब जांच की जरूरत नहीं नाम लिया है, इनकी शरीके हयात ने इस तरह की जांच के जीरो टॉलरेंस। नहीं आपको क्या कह रहे हैं, इल्जाम लगाया कि सरकार पे, जांच की बात नहीं आई, आपने सीधा उसमें पेट्रोल डाल के जला दिया, तब जांच की बात नहीं आई। जब वो जर्नलिस्ट जैसा आप कह रहे थे वो इल्जाम लगा रहा था, फूंक दिया आपने। अगर झूठे इल्जाम भी होते, बस आप पेट्रोल डाल के उसे जला देना, तब क्या हुआ? जी, तब जांच की बात नहीं आई, तब जांच का सोच नहीं है आपको। अच्छी बात आप जब पूछ रहे हैं लेकिन आप कि कहाँ हैं आपके मंत्री, आप जांच की बात कर रहे हैं। जला दिया गया था जिंदा, उसकी भी लाश आज तक नहीं मिली है। मैं इसका क्या मतलब हुआ? One person being burned condones the act when somebody else is burned? Come on, Vakarji, what are you saying? Exactly. And one act of horror is as bad as another act of horror. And these are horrific. Okay, these are horrific incidents. Okay, tell me one thing, Vakarji. Tell me one thing. Suppose somebody you know. No. 1 minute. आप मुझे 3-4 बातें आपको कहूंगा। वकार जी की फैमिली के साथ खड़े हैं, वकार जी, जगेंद्र जी के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर कार्रवाई भी। कुछ जांच नहीं हो रहा है, कुछ जांच के साथ खड़े हैं तो सीबीआई इंक्वायरी करने दें। अगर आप उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली डिमांड करती है कि सीबीआई इंक्वायरी। दो बार इससे पहले भी आप लोग सीबीआई इंक्वायरी करा चुके हैं, अब सीबीआई इंक्वायरी करने दें। उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ही सही साबित हुई है। ओके, सो here's a challenge। नहीं, आप एक मिनट, आपने देखा था, आप अगर मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा हूँ। वकार जी 2 मिनट शांत बैठे। वकार जी मैं अपने व्यूअर से कुछ कह रहा हूँ, आप 2 मिनट शांत रहिए। मैं व्यूअर से कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज। मैं व्यूअर से कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू द व्यूअर्स। इफ यू आर वॉचिंग द न्यूज आवर प्रोग्राम, आप जहां पे भी न्यूज आवर प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, आप जोधपुर में देख रहे हो, जयपुर में देख रहे हो, रांची में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, लद्दाख में देख रहे हो, मैं अंग्रेजी और हिंदी में कहूंगा कि एक बहुत ही घिनौना केस हुआ है। जर्नलिस्ट एक्सपोज कर रहे थे करप्शन को और रेप के एलिगेशंस को। उनको पीटा गया, उनके घर में आके उनको धमकाया गया, पुलिस के पास गए, कुछ नहीं किया, फिर जाके उनके फैमिली लोगों के सामने उनको जिंदा जला दिया गया, वो मर गए। उनके डाइंग डिक्लेरेशन है, टेप पर है, हमने दिखा चुके हैं। मगर जो अखिलेश यादव की सरकार है, जो सामाजिक न्याय के बारे में बोलती है, उन्होंने ठान ली है कि जर्नलिस्ट जल गया, कवर अप कर देंगे। और मैं आपको आज कह रहा हूं, आप मुझे कहिए क्या इस पर कवर अप होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए आप हमें कैसे हेल्प करेंगे। ये सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं है, अगर जर्नलिस्ट के साथ ये हो जाए तो कोई भी आम आदमी के साथ ये हो सकता है। और जहां पे जिस देश में, एंड आई एम नाउ गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, वेयरएवर इन दिस कंट्री द पुलिस enter the house of a citizen of this country, and instead of giving him justice like a private army of a politician, where a policeman burns a citizen alive, is unacceptable and it must not be covered up. Absolutely. And I challenge the Akhilesh Yadav government tonight, Padma, let us see how they cover this up. Let us see how they cover this up. The whole national media will question it tonight. The entire national media will stand up in one voice against this government in Uttar Pradesh. Yeah, one more thing. I just want to make a small point here. The entire country will. If I may be allowed,
Arnab, from the local sources, Sorry, Shazia. one has just got to know that the woman concerned, her family is facing a lot of pressure. Let's make sure that the woman in question, the one who was allegedly gang raped, that her family is not harassed, because that is going on and a lot of pressure is being exerted on the family, as one has learned from the local sources. So at least let's ensure. मैं इंतजार करना चाहूंगी कि कम से कम वो जो महिला जिसके साथ एक घिनौनी हरकत की गई, जिसका पर्दाफाश जगेंद्र जी कर रहे थे, कम से कम उस औरत को प्रोटेक्शन दिया जाए और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए. And I want to read out now. I want to read out, Ajay, somebody sent me, I don't know if this is absolutely accurate, but apparently on the 22nd of May, the journalist puts out a Facebook post. And he says, Rammurthy Singh Verma, yes, मेरी हत्या कर सकते हैं. इस समय नेता, गुंडे और पुलिस सब मेरे पीछे पड़े हैं. सच लिखना भारी पड़ रहा है जिंदगी पर. राममूर्ति वर्मा के कुछ कारनामों का खुलासा किया तो हमला करा दिया. उनके लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी तो राममूर्ति ने एक स्मेकिया अमित से मेरे खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या का प्रयास की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करवा दी. 28 अप्रैल को हर मामले में मेरे पैर का पंजा टूटा था और and he goes on, he gives full details. मेरे मारपीट तो दूर की बात है. अब पुलिस मेरे घर पर ऐसे दबिशे दे रही है जैसे मैं कहीं से डकैती डालकर कत्ल करके भागा हूं. This is the fact. This is a person. He puts it on Facebook. No, an honest journalist. I'm telling you. Ajay Bose. You know, we have been. I'm telling you, this government in Uttar Pradesh has tried to take us on. It always, talks about social justice. This absolutely. In this case, one thing is very clear. Yes, Ajay. No. One thing is very clear. We cannot expect justice from the Uttar Pradesh government in this case. Firstly, we must demand a CBI investigation into the whole case. There is no question that these people will not protect their minister, will not protect their policemen. To expect these policemen to do a proper investigation is downright stupid for us. So I think first thing we must demand is a full-fledged CBI investigation into this, and find out and pinpoint all the blame, and then we must demand very harsh justice. Because if we accept this, we must make this into a test case. Because I can tell you that 40 years ago, when I was a young reporter during the emergency, and I did a book on the emergency, this kind of case never came. We talk of freedom freedom and peril at that time. But this is worse. This is worse than the emergency. तो कह दीजिए अखिलेश यादव को And I hope the BJP इस बात पर कवर अप नहीं होगा. आपको और एक बात कह दूं मैं, आपको और एक बात याद दिला दूं आपको याद दिला दूं वकार जी आपको कुछ याद दिला दूं. आजकल जो पॉलिटिशियंस है ना, नेता है, उनकी मेमोरी बहुत खराब हो जाती है. जब बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता ने 16 या 17 साल के लड़की के खिलाफ रेप के बाद हर तरह के एलिगेशंस डाल के 3-4 साल पहले जेल में डाल दी थी, तो उस वक्त मायावती भी इस तरह से बात कर रही थी जैसे आप आजकल कह रहे हैं. कुछ नहीं किया, लड़की ने ऐसे आरोप डाल दिए, लड़की की गलती है. मगर क्या हुआ, सारी मीडिया पहुंच गई. आपने मायावती को एक्सपोज किया. एमएलए जो कायर एमएलए थे निकाले गए, नाम मुझे याद नहीं है, और जेल में डाला उनको. हम चाहते हैं इस वक्त ये जो मंत्री है आपके, टाइम वेस्ट मत कीजिए. आपके इंटरेस्ट में है, उनको जाके निकालिए, उस कायर मंत्री को जेल में डालिए. एक तरफ तो जेल में डालिए, फिर इतने डरपोक बन जाते हैं. आप पुलिस को भेज के वकार जी
जब जर्नलिस्ट या कोई भी आम आदमी के घर में पुलिस को भेज हैं, जिंदा जला देते हैं, तब तो बहुत अहंकार होता है। अब कहाँ है वो? शाहजहांपुर की आप इंसाफ की बात सिर्फ तब करते हैं जब आपका आपके मंत्री का सवाल। हम तो आप पर कतई विश्वास नहीं करते। हम आप पे विश्वास नहीं करते। आपको आप कौन होते हैं इसमें जांच करने के लिए? बहुत ही विश्वास करें ना करें, बहुत संजीदगी से आप इस मामले जी, मैं आप पे विश्वास नहीं करता और मैं कह रहा हूं सारी देश की मीडिया इस केस को फॉलो करेगी। आप देखिए कब तक कवर अप कर सकते हैं। मतलब हुआ विश्वास आप देखिए कब तक कवर अप कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। कोशिश कीजिए, विश्वास करें ना करें। जगेंद्र सिंह, इसका क्या मतलब हुआ? ये घमंड हुआ ना। जगेंद्र सिंह के घिनौने हत्या के को हम फॉलो अप करेंगे और मंत्री को पकड़ेंगे और मंत्री को जेल में भेजना पड़ेगा। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन डिबेट नंबर 2 on the News Hour tonight.